جب کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے اور خداوند کو اپنی زندگی دیتا ہے، اپنا آپ خداوند کو سونپ دیتا ہے، تو آسمان پر ہزاروں ہزار فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ تو کل زمین پر بھی جشن ہوا، ہم یہاں پر آئے، گیت گائے، کھانا کھایا، آپس میں بات چیت کی۔ کل کا دن بھی ایک میٹنگ کی طرح کا تھا، اور آسمان پر بھی ایک بڑا جشن ہوا۔ تو یہ ساری خداوند کی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ خدا اپنی کلیسیا میں لوگوں کو شامل کر رہا ہے۔ آمین۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اگر بپتسمہ لیا تو کیوں لیا، بپتسمہ لینے کا فائدہ کیا ہے، ہم آج ان باتوں کے لیے غور کریں گے۔ اور میں چاہوں گا کہ ہم سب اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں۔ خداوند یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، اور خداوند تو پاک روح کے ذریعے سے ہماری مدد کرنا، اپنے پاک روح کو ہمارے دلوں میں بھیجنا، ہمارا منہ بن جانا، اور خداوند باپ تو ہمیں سکھا۔ خداوند تو ہمارا اچھا استاد ہے، اور خداوند آج تیرے نام میں ہم کلام جو کچھ سنیں وہ ہمارے دلوں کی تختی پر لکھا جائے، اور خداوند اس کلام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خداوند تیری بادشاہی کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، یسوع کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم نے ایک حوالہ پڑھا کہ ایک شخص نیکودیمس رات کے وقت یسوع کے پاس آتا ہے اور یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے، یہاں پر ہم اس کی گفتگو کو دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں آپ کے لیے اس حوالے کو پڑھتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی پہلی آیت۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ سردار اس وقت علماء دین تھے، گرنتھی تھے، جو بڑے مقام پر تھے، اور ہیکل کا سارا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن یسوع مسیح کوئی ہیکل کا سردار نہیں تھا، وہ ایک عام انسان بن کے اس نے 12 اپنے شاگرد اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور گلی محلوں میں وہ خدا کا کلام سناتے تھے۔ تو وہ رات کے وقت یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خداوند جو معجزے تو دکھاتا ہے، اے استاد، اے ربی، جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی دوسرا نہیں دکھا سکتا جب تک کہ وہ خدا کی طرف سے نہ بھیجا گیا ہو۔ اور خداوند کے وہ عجیب کاموں کو دیکھ رہا تھا، وہ سن رہا تھا کہ کوڑی چنگے ہو رہے ہیں، لنگڑے چلائے جا رہے ہیں، یہ شخص پانیوں پر چلتا ہے، یہ بدروحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں، اور یہ گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اور اس بندے کے دل میں باقی جو فریسی تھے، فقی تھے، وہ جیلس کرتے تھے، وہ یسوع کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو بندہ ہماری بے عزتی کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ ہم سے تو ایسے کام ہو نہیں پاتے اور ہم چرچ کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بندہ، یہ کوئی پاسٹر نہیں، یہ کوئی کاہن نہیں ہے، لیکن اس سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ اور باقی جتنے لیڈر تھے، سمجھے کہ ہیکل کے، چرچ کے، وہ اس سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بندہ سرداروں میں سے ایک ایسا تھا جس کے دل میں خدا کا خوف تھا،
اور اس نے سوچا, اس نے کہا کہ خدا کے علاوہ, خدا کی طاقت کے بغیر کوئی بھی شخص اتنے معجزے نہیں کر سکتا. تو اس سے وہ پوچھنے کے لیے آیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. تو یسوع نے اسے کیا کہا؟ یسوع نے اسے ایک بات کہی کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اب یہاں پر 2 کوسچن ہیں. ایک مجھے پتا ہے آپ آسانی سے اس کا جواب دیں گے, لیکن دوسرے کا مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میں بھی آپ اس کا صحیح جواب یا پورا جواب نہ دے پائیں. پہلا کوسچن, نئے سرے سے پیدا ہونا یہ کیا ہے؟ نئی زندگی شروع کرنا, بپتسمہ, بپتسمہ لے کے نئی زندگی شروع کرنا. اور جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہمیں چاہیے, پاک روح. جب نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات آتی ہے تو یاد رکھیں, نئے سرے سے پیدا ہونا ہے کہ پانی کا بپتسمہ لینا ہے, اور اس کے بعد اگلا کام کس کا ہے؟ خدا کا. خدا نے کہا ہے کہ جب تم پانی سے بپتسمہ لوگے, توبہ کر کے میرے پاس آؤ گے, بپتسمہ لوگے, تو کیا انعام میں پاؤ گے؟ روح القدس, پوتر آتما تم انعام میں پاؤ گے. یہ کوسچن ہمارے پاس ہے. اگلا تھا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو جائے تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. جب تک, یعنی اگر آپ کو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے, بلکہ ایون آپ کو اگر خدا کی بادشاہی کو دیکھنا ہے, تو اس کی شرط کیا ہے؟ خدا کے کلام کے مطابق چلنا. اور ابھی یسوع مسیح نے کیا نشانی دی تھی اس کی؟ نئے سرے سے پیدا ہونا. جب ہم خدا کی بادشاہی کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ہم اس بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں, تو ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے سمپل جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے خدا کی بادشاہی کو دیکھنا ہے, داخل ہونا ہے, تو بپتسمہ لینا بہت ضروری ہے. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو, کل یہ کام خدا کے بیٹے نے کیا ہے. اس نے بپتسمہ لیا ہے اور خدا کی کتاب میں, جیون کی پوتھی میں اس نے اپنا نام لکھوایا ہے. اور اب خدا اپنا پوتر آتما اپنے بیٹے کو بخشے گا. بلکہ میرا ایمان ہے آلریڈی پاک روح کا کام اس کے اندر شروع ہو گیا ہے. ہاللیلویہ. لیکن بات یہ ہے, خدا کی بادشاہی ہے کیا؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. کیا سمجھتے ہیں کیا ہے خدا کی بادشاہی؟ ہمیشہ کی زندگی اور جب خدا کا تخت ہمارے اندر لگ جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی بادشاہی ہے. اور اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ خدا کی کنگڈم 3 طرح کی ہے خدا کے کلام کے مطابق. آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. پہلے نمبر پر جو کنگڈم ہے اسے کہتے ہیں اسپرچول کنگڈم, روحانی بادشاہی. کتنی بادشاہیاں ہیں؟ 3. پہلے نمبر پر روحانی بادشاہی ہے. اور روحانی بادشاہی میں کیا ہے؟ جب بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا کا روح جب ہمارے اندر آ کر بسیرا کر لیتا ہے, ہمارے دل کے اندر جب بس جاتا ہے, تو اس وقت پہلی بادشاہی کا آغاز ہو جاتا ہے. اور وہ بادشاہی ہے روحانی, روح کی بادشاہی. ایک خدا میں کتنے شخص ہیں؟ 3. خدا باپ, بیٹا اور روح القدس.
अभी हम किस जमाने में जी रहे हैं? किसके जमाने में? पवित्र आत्मा के। और पहला स्टेप जब खुदा की बादशाही हमारे दिल में आती है तो पवित्र आत्मा की बादशाही हमारे अंदर आ जाती है। फिर मेरे अजीजों, एक खुशी, एक इत्मीनान और एक तसल्ली खुदा हमें दे देता है। फिर दूसरी बादशाही यीशु मसीह की बादशाही है। एक खुदा में कितने शख्स हैं? 3, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस। रूहुल कुद्दस की बादशाही हमने देख ली। फिर है यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही, और उसके बाद है तीसरी, जिसको हम कहते हैं खुदा की बादशाही, सफेद तख्त की अदालत और नए यरूशलेम वाली जो बादशाही है, जो इटर्नल है, जो कभी ना खत्म होने वाली है। ना वहां पर रोना है, ना मौत है, और हम खुदावंद के साथ हमेशा हमेशा के लिए जब रहेंगे, नए यरूशलेम में रहेंगे, तो वो खुदा की बादशाही है। यानी 3 बादशाहियां हैं खुदा की। पहले नंबर पर जब खुदा रूह के जरिए से हमारे दिलों में आकर बसेरा करता है। दूसरी बादशाही जब खुदा यीशु मसीह के वसीला से 1000 साल के लिए इस धरती पर बादशाही करेगा। और तीसरा जब खुदा नए यरूशलेम को लेकर एक पूरा सजा सजाया शहर लेकर हमें उस शहर में हमेशा हमेशा के लिए रखेगा। तो ये 3 तरह की बादशाहियां हैं। और पहली बादशाही जो हमारे दिलों में जिसकी जरूरत है वो पाक रूह की जरूरत है, पवित्र आत्मा की बादशाही की जरूरत है। ये हमें मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 31वीं आयत में मिलेगी। ये बात अगर आप मेरे साथ निकालें, मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 31वीं आयत को हम पढ़ते हैं। पहले नंबर पर जिस बादशाही की मैं बात कर रहा हूं वो है स्पिरिचुअल किंगडम। अभी हम इस पे बात करते हैं, रूहानी बादशाही। मत्ती 6 बाब 31वीं आयत। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। उस वक्त लोग रूमियों के हत्थे चढ़े हुए थे, रूमियों को टैक्स देना पड़ता था, इस्राएली गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे थे, और इस्राएलियों को जिस बादशाही की जरूरत थी वो ये थी कि कोई बादशाह आए, रूमियों को यहाँ से भगाए और हम आसानी की जिंदगी बसर करें, खाना पीना वाफर मकदार में हो, कपड़ों की कोई कमी ना हो। तो खुदा यीशु मसीह आकर वहां पर क्या कहते हैं? कहते हैं तुम पहले मेरी बादशाही को ढूंढो तो ये चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। तो अब खुदावंद यीशु मसीह कौन सी बादशाही की बात कर रहे हैं? एक हवाला हम और पढ़ते हैं, लूका 17 बाब की 20वीं आयत। लूका 17 बाब उसकी 20वीं आयत। फरीसी यहां पर उसको पूछते हैं, शरा के आलम उसको पूछते हैं। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहरी तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहेंगे कि देखो वो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। तुम्हारे दरमियान है। वो तुम कहीं ढूंढोगे नहीं कि वो बादशाह बन के यहाँ आ गया या वहां पर उसका तख्त लगा है, बल्कि खुदावंद कहता है कि खुदा की बादशाही जो अभी तुमको मिलने वाली है वो तुम्हारे दरमियान है। यानी पाक रूह की बादशाही की बात खुदावंद यीशु मसीह करते हैं। और इस बात को क्लियरली हम कहां पर देखते हैं? अमाल की किताब के अंदर हम इसको क्लियरली देख सकते हैं। रसूला के कर्तव्य उसका पहला बाब
और उसकी 6 आयत से पढ़ता हूं। अमाल पहला बाब 6 आयत। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? वही उनके दिमाग में चल रहा है कि कोई बादशाह आएगा और रूमियों को यहां से भगाएगा। यीशु ने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो यीशु ने क्या कहा कि जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो ये जब पाक रूह हमें मिल जाता है तो उस वक्त हम कुव्वत पा जाते हैं और खुदा की पहली बादशाही, पहला लेवल यहां पर शुरू हो जाता है। आप याद रखें, जिसके अंदर खुदा के पाक रूह, जिस खुदा का पाक रूह काम करता है, वो शख्स मामूली नहीं रहता, वो आम नहीं रहता। उसकी दुआ में असर है, उसके अंदर खुदा ने गिफ्टों को रखा होता है, उसके अंदर खुदा ने अपने फलों को रखा होता है। सब्र, मोहब्बत और इत्मीनान और खुशी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जिसके अंदर खुदा का पाक रूह आ जाए, उसको वो यही कहता है दाऊद की तरह, मेरा प्याला लबरेज रहता है, मैं खुशी से भरा हुआ हूं। उस दिन हम पास्टर जी से पूछा, पास्टर जी आपकी खुशी का लेवल क्या है? तो उन्होंने क्या कहा? 100%, 100/100 है। मैं बहुत खुश हूं खुदामंद में, फुल खुश हूं। और मेरे अजीजों, ऐसे ही जब खुदा की बादशाही हमारे दिलों के अंदर आ जाती है तो खुशी का लेवल 100 गुना हो जाता है। और फिर हमारे अंदर दुआ में असर, शैतान भागता है हमारी आवाज से भी। मैंने एक बहन के लिए पाकिस्तान में, वो बहुत बीमार हो गई थी और मुर्दा सा जिस्म उसको लेकर आए थे, हड्डियां रह गई थी और उसने 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया था और अब पता था उनको कि ये मर जाएगी। और जब वो लेके आए तो जब हमने दुआ शुरू की उसके लिए, तो वो मुर्दा जिस्म के साथ से ही मोबाइल को दूर फेंकना चाहती थी, टांगे मारती थी अपने लोगों को जो उसको उसके लिए दुआ करवाने के लिए उसके पास आते थे। तो ये सारी बातें उसने जब वो ठीक हो गई तो बताया और हम दुआ करते रहे। और खुदावन, जो कुछ लोगों को उस लड़की के बारे में पता है, ठीक है, क्या नाम था उसका? अनिका, याद है। और क्या हुआ कि वो लड़की ठीक हुई और उसने गवाही दी और अब वो, पहले वो सिर्फ एक ढांचा थी हड्डियों का और अब एक खूबसूरत नौजवान लड़की, और अब वो काम कर रही है। और जब भी वो बात करती है, फोन करती है, तो दिल को खुशी मिलती है। तो मेरे अजीजों, जब खुदा की बादशाही पवित्र आत्मा के जरिए हमारी जिंदगी में आती है तो फिर बड़े बड़े काम होते हैं। अंकुर नारुल्ला की मिनिस्ट्री, बजिंदर की मिनिस्ट्री, इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्री, खुदा काम कर रहा है और ये रियलिटी है। सच माने, आप लोगों पर फजल है खुदा का कि आप बदरूहों के जकड़े हुए नहीं हैं, वहां पर लोग फंसे हुए हैं इन मुसीबतों के अंदर। तो खुदा की पहली बादशाही रूह के जरिए से हमारे अंदर है। और पौलुस रसूल आगे इसको और ज्यादा नखेर के बताता है। रोमियो 14 बाब की 17 आयत, रोमियो 14 की 17 क्या लिखता है? क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, ये नहीं है कि हम खाएं पिएं और बहुत सा पैसा हो और शाही लिबास हमने पहने हो, तो वो ये वाली बादशाही की बात कर रहा है। कहता है नहीं, पौलुस रसूल भी समझ जाता है इस बात को। कहता है तुम्हें अभी जिस बादशाही की जरूरत है वो ये वाली है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूहुल कुद्दस की तरफ से होती है। हालेलुया। जब हम अपने अंदर खुश हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं, पीस हमारे अंदर आ जाता है, चाहे हम झोंपड़ी में ही क्यों ना बैठे हुए हों,
तो ये है बादशाही, स्पिरिचुअल बादशाही। ऐसी बादशाही जब खुदा अपना तख्त हमारे दिलों में लगा लेता है। बाबा बुल्ले शाह एक शेर कहता है, मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढैंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी रब दिलां विच रहिंदा। तो मेरे अजीजों, जब रब हमारे दिलों में रहना शुरू कर दे तो समझें कि खुदा की बादशाही हमारे दरमियान आ चुकी है। और वो तब ही मुमकिन है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा। हालेलुया। और बपतिस्मा पाकर खुदा का वादा है कि मैं रूहुल कुद्दस तुम्हें इनाम में दूंगा। दूसरी बादशाही यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही है। इसमें ये अगला लेवल है, जो इस बादशाही में वफादार रहे, जिन्होंने अपने दिल में खुदा को जगह दी, पवित्र आत्मा को जगह दी, और वो अड़े और खड़े रहे, तो फिर चांस है कि हमारी पोशाकें बदल जाएं, फिर शाही लिबास हम पहनकर खुदा की बादशाही में, यीशु की 1000 साला बादशाही में इसी धरती के ऊपर रहें। यीशु मसीह ने एक तख्त लगाना है, ठीक है, इस्राएल के अंदर। इस्राएल को जो है वो सजाया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा, और ऊंचाई के ऊपर एक टेंपल बनाया जाएगा, हैकल बनाई जाएगी। और वो हैकल इज़िकियल की किताब 39वीं और 40वें बाब में उसका जिक्र आपको मिलेगा कि वो हैकल कितनी खूबसूरत होगी। कुछ इस तरह का मंजर वहां पर बताया गया है। शेर होंगे और दरवाजे होंगे, 12 दरवाजे, और उसके अंदर से एक नदी पानी की निकलेगी, और वो नदी जाकर बहरे मुर्दार में, जिसको डेड सी कहते हैं, उसके अंदर वो पड़ेगी। और डेड सी का पानी जो है अब मुर्दा नहीं रहेगा, बल्कि वो जिंदा हो जाएगा, और मछलियों की अनलिमिटेड तादाद वहां पर पाई जाएगी। मेवा के दरख्त उसके आर पार लगे होंगे। तो ये वो बादशाही होगी, और उसमें मैं आगे आपको बताता हूं और उसमें हमें क्या क्या मिलेगा। ये वो लेवल है जिसको आप देख सकते हैं। अच्छा, वो यहां पर उसका तख्त लगा है। दाऊद भी उसके बारे में कहता है सयून दे दवाले फिरो, बुर्ज गिनो आलीशान, ते ओदी शहर पनाह ते दिल नाल करो देहान। शहर पनाह के ऊपर जो नजर आएगी, जो खूबसूरत होगी, जो ऊंची होगी। और खुदा का कलाम कहता है दुनिया की सारी कौमें, सारे बादशाह रब्बुल अफवाज के सामने अपने खुदा को सजदा करने के लिए आया करेंगे यरूशलेम के अंदर, ठीक है। और उस वक्त आपके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, लिबास की कोई कमी नहीं होगी। आप खुदावंद के बेटे और बेटियां, शहजादे और शहजादियां बनकर उसके साथ रहेंगे। फिर एक और तरह की बादशाही है जिसे हम खुदा की बादशाही कहते हैं, किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं। और ये उस वक्त है, ये मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 1 करंथियों 2 बाब, 1 करंथियों 2 बाब और 6 आयत देखें। फिर भी कामलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहान की और इस जहान के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं, बल्कि हम खुदा की वो पुशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी, जिसे इस जहान के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन
हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। और आज भी अगर आपको पता चल रहा है इन बादशाहियों के बारे में, एक ऐसी बादशाही जो खुदा की बादशाही है, हमारे दिल में जब पवित्र आत्मा आता है उस वक्त लग जाती है। दूसरी बादशाही वो है जब खुदावंद यीशु मसीह अपना तख्त इस्राएल के अंदर लगाएगा। और तीसरी बादशाही ये है जो आंखें, जो बातें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, और वो है नया यरूशलेम वाली बादशाही, जो आसमान से एक सजा सजाया शहर 1000 साल बादशाही के बाद हमें मिलेगा। ये तीसरे नंबर की बादशाही है, खुदा की बादशाही हम इसे कहेंगे। बाकी तो खुदा बाप भी है, बेटा भी है, रूहुल कुद्दस भी है। तीनों बादशाहियां खुदा ही की बादशाहियां हैं, लेकिन आपको अलग अलग बयान करने के लिए मैं बता रहा था। पहली बादशाही को हम रूहानी बादशाही, पाक रूह की बादशाही कह सकते हैं। दूसरी बादशाही को हम यीशु मसीह की बादशाही कह सकते हैं, 1000 साल बादशाही कह सकते हैं। और तीसरी खुदा की बादशाही, जब खुदा एक पूरा सजा सजाया शहर, नया यरूशलेम शहर तैयार करके लाएगा और फिर खुदा के लोग उसमें रहेंगे। मैं आपको खुद यीशु की बादशाही के बारे में आज थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है कि हम इसको एक एक करके देखेंगे। आज हमने सिर्फ 3 बादशाहियों के बारे में मुख्तसर तौर पर सीखा है, लेकिन अगली दफा हम किस बादशाही के बारे में सीखेंगे? यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही के बारे में, क्योंकि वो एक लेंथी टॉपिक है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हम सीखेंगे खुदा की बादशाही। और खुदा की बादशाही कब? जब नया यरूशलेम हमारे दरमियान रहेगा। हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या बातें होंगी, हम क्या करेंगे, कैसे चलेगा ये सब कुछ, ठीक है। और आज के दिन में मैं जो आपको चाहता हूं वो याद रखें, वो है रूहानी बादशाही। रूहानी बादशाही भाई चांद क्या है? जो हमारे दिलों के अंदर खुदा जब हमारे दिलों में आ जाता है और हमारी जिंदगी में फिर अजीब काम होते हैं, तो वो रूहानी बादशाही है। क्या क्या काम वैसे होते हैं जब खुदा हमारे दिल में आता है? तो रूह की नेमतें कौन कौन सी हैं? नहीं, रूह की नेमतें, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। कौन कौन से हैं? नहीं, गिफ्ट्स, फ्रूट नहीं, मौजज़े। गिफ्ट है जब आप मौजज़े कर लेते हैं तो ये एक गिफ्ट है, ठीक है। और गिफ्ट, मौजज़े और शिफा की नेमत और गिफ्ट सेम ही चीज है। और हाँ, गैर जुबानों में दुआ करना, हाँ, इन चर्च के कामों में हिस्सा लेना, और विजडम जब हमें आ जाती है, नॉलेज आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हमें मसहलत आ जाती है, तो ये सारे गिफ्ट हैं, ये वरदान है, धात हैं, जो खुदा पवित्र आत्मा जब हमारे दिलों में अपना राज कर लेता है, उसकी बादशाही आ जाती है, तो ये काम आते हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ रूह के फल हमारे अंदर पैदा होते हैं। और रूह के फलों में आप बताएं कौन कौन से हैं? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, मेहरबानी, हलीमी, बर्दाश्त, परहेजगारी, ये सब बातें। और फिर इंसान आम इंसान नहीं रह जाता, फिर वो खास हो जाता है, खुदा का तख्त उसके अंदर लग चुकता है। इसीलिए हम गीत गाते हैं, तेरे दिल के दर पर यस्सु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। तो मेरे अजीजों, पहली बादशाही को हासिल करें तो बाकी ये चीजें, खुदावंद ने कहा पहले तुम मेरी बादशाही को ढूंढो तो ये बाकी दुनिया की चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। तो आज के दिन में हमने जो सीखा है वो खुदा की
بادشاہی جو ہمارے دلوں میں پاک روح کے ذریعے سے آتی ہے اس پر غور کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کا پہلا سٹیپ تھا توبہ کر کے بپتسمہ لینا، اور پاک روح ہمیں انعام میں ملے گا، اس کا تخت ہمارے اندر لگ جائے گا۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔